বিদেশী বিতৰণৰ নামত বছৰ বছৰ ধৰি কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি, কিন্তু কাৰ্যত শূন্য ফলাফল। অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী শব্দটো কেৱল ৰাজনৈতিক জুমলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে। কলগাছিয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত বিদেশী বিতৰণকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ মহিমা সিং আৰু আব্বাছ হাফিজে। এই সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে মন্দিয়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেক। সংবাদমেলত বিজেপি চৰকাৰৰ নীতি নিয়মক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মহিমা সিঙে কয় যে তথাকথিত অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ পৰিচয় স্পষ্ট কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। তেওঁ অভিযোগ কৰে যে পূৰ্বতে বিজেপিৰ নেতাসকলে অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক নিজেই দেশ এৰি যাবলৈ হেঁচা দিয়াৰ কথা কৈছিল, আনকি তেওঁলোকক কাম নিদিবলৈও জনসাধাৰণক আহ্বান জনোৱা হৈছিল। শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও একেধৰণৰ মন্তব্য কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। মহিমা সিঙে আৰু লগতে কয় যে 2014 চনৰ পৰা অমিত শ্বাহ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে একেধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যদিও ইয়াৰ বাস্তৱ ফলাফল দেখা নগ'ল। 2021 চনত অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক এজন এজনকৈ চিনাক্ত কৰি পঠিয়াই দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল যদিও সেই প্ৰক্ৰিয়া আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে শেহতীয়া গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এক কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে জনসাধাৰণৰ ওপৰত এৰি দিয়া বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁ বিজেপিৰ দ্বৈত নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে এফালে বিজেপি চৰকাৰে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আনফালে উত্তৰ প্ৰদেশত বহু হিন্দু বাংলাদেশী পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ খবৰ ওলাইছে। ইয়াৰ দ্বাৰা এই বিষয়টো বাস্তৱ সমস্যাতকৈ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত অধিক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। NRCৰ তথ্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে চৰকাৰে এই তথ্যসমূহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহয়, কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ স্বৰূপ উন্মোচিত হৈ পৰিব। পৰিসংখ্যা উল্লেখ কৰি মহিমা সিঙে কয় যে মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বত থকা UPA চৰকাৰৰ দিনত 10 বছৰত মুঠ 88,992 গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। বিপৰীতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত থকা বিজেপি চৰকাৰে 11 বছৰত মাত্ৰ 3,939 গৰাকীকহে বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰে বাস্তৱ তথ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা যায় বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে ভয় আৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি বিজেপিৰ পুৰণি কৌশল। অতীততো বিভিন্ন সময়ত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি দেখুওৱা হৈছিল আৰু ৰাজ্যসমূহক তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে সেই দায়িত্ব নিজৰ পৰা আঁতৰাই দি জনসাধাৰণৰ ওপৰত জাপি দিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰে। শেষত মহিমা সিঙে কয় যে দেশৰ নাম যিয়েই নহওক, ভাৰত, হিন্দুস্তান বা ইণ্ডিয়া, দেশ এখনেই আৰু ইয়াৰ মানুহৰো মন একেই। অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ ঘৃণা আৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। 2014 से लेकर के शुरुआत कीजिए और इस चुनाव तक भी लगातार भाजपा के नेताओं ने बार बार बांग्लादेशी घुसपैठिया ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया, मजहब के नाम पे लोगों को भटकाने का, उनको बांटने का प्रयास जारी है। आप देखिए कि 2014 में पहली बार इस पूरी मुहिम की शुरुआत पुरजोर तरीके से की गई। शुरू तो बहुत पहले हो गई थी, 1997 में हो गई थी। 1997 पे भी मैं आपको लेकर के जाऊंगी, लेकिन 2014 में जब केंद्र में इनकी सरकार बनी और यहाँ से चुने हुए सांसद, उन सांसद महोदय का नाम था कामाख्या प्रसाद तासा। उस समय जोरहाट के सांसद चुनकर के आए। उनके बड़े बयान हैं, आप गूगल कर लेंगे, आज तो स्मार्टफोन्स का ज़माना है, आपको मिल जाएंगे। कामाख्या प्रसाद तासा ने सीधे स्पष्ट तौर पर उस समय ये कहा कि 15 दिन के अंदर भाजपा का युवा मोर्चा घुसपैठियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू करेगा। घुसपैठिए कौन हैं, कितने हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इसके आंकड़े भाजपा के पास नहीं है। असम को असम से लड़ाने का काम, झारखंड को झारखंड से लड़ाने का काम, भारत को भारत से, इंसान को इंसान से लड़ाने का काम भाजपा जो कर रही है, उसी मुहिम में कामाख्या प्रसाद तासा ने ये दावा किया और उस दावे के साथ ये भी कहा, पूरी रणनीति बताई, रोड मैप बताया, ये कहा कि हम घर घर जाएंगे और हम घर घर जाकर के ये प्रचार करेंगे कि आप इन्हें चिन्हित करें, इनकी पहचान करें। हम पहले घुसपैठियों से कहेंगे, ऐसा कामाख्या प्रसाद तासा ने कहा कि भाजपा का युवा मोर्चा उन्हें कहेगा या तो आप खुद चले जाएं
नहीं तो हम घर घर जाकर के लोगों से बोलेंगे कि आप उन्हें काम देना बंद करें ताकि वो अपने आप ही इस देश को छोड़ करके चले जाएं। ठीक वही बात जो अभी कुछ दिन पहले इस देश के आउटगोइंग सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही। वही अब आप ये देखिए, उसके बाद अमित शाह आते हैं, उसी बात को दोहराते हैं। 2014 से लगातार जिस बात को उनके सांसद कहते आ रहे थे, अब पिछले 5 सालों में हमने देखा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी बार बार आकर उस बात को दोहराते गए। अभी बीते कुछ हफ्तों में तो आपने देखा कि हद ही हो गई। आपके जो आउटगोइंग सीएम हैं, वो जो 2021 में ये दावा कर रहे थे कि हम एक एक को चुन करके निकाल देंगे, हम पता लगा लेंगे कौन है, कितने हैं, कहाँ हैं, ये वो लोग हैं जो आज तक जनगणना तो करा नहीं सके हैं पिछले 15 साल में। वो कहने लगे कि हम चुन चुन कर निकाल लेंगे और भगा देंगे। अभी उन्होंने हाल ही में असम में एक बड़े गुवाहाटी के बड़े होटल में हो रही एक चैनल की कॉन्क्लेव में ये कहा कि मैं तो अपनी पूरी उम्र लगा कर के भी, कितने बेचारे बन के उन्होंने कहा, मैं जो अपनी पूरी उम्र लगा कर के भी इस प्रदेश से घुसपैठियों को नहीं निकाल पाऊंगा। ये काम तो असम की जनता को करना होगा। उसमें सुर्खियां हैं कि 331 परिवारों को, हिंदू बांग्लादेशी परिवारों को उत्तर प्रदेश में बसाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। यानी बांग्लादेश आपके लिए मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान मुद्दा है। असम में आकर के, झारखंड में जाकर के, छत्तीसगढ़ में जाकर के, महाराष्ट्र में जाकर के, हर प्रदेश में जाकर के आप बांग्लादेशी घुसपैठिया ये बोलेंगे, लेकिन असम में आते ही आप एनआरसी के आंकड़े भी बाहर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो आंकड़े आपको आईना दिखाते हैं, आपकी सांप्रदायिकता, धर्म, मजहब की राजनीति का आईना दिखाते हैं। मनमोहन सरकार के, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो 10 साल की सरकार थी, उसमें एक एक साल में आपको बताऊं, 2005 में, 2014 में आप अगर देखें, 2014 के बाद मोदी सरकार के आंकड़े हैं 1989 उनका पहला साल, हमारा पहला साल 2005 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। ये गृह मंत्रालय के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं हैं। 2005 में हमारी पहले साल की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 14,916 घुसपैठियों को बाहर करने का काम किया गया। वहीं मोदी सरकार के पहले साल में 989 ओनली। 2006 में हमारी सरकार के दूसरे साल में, यूपीए सरकार के दूसरे साल में 13,692 निकाले गए। 2015 में 474, मात्र आधा हो गया, 989 से आधा नंबर आ गया। 2007 में हमने 12,135 घुसपैठियों को, जो गैर कानूनी तौर से हमारे देश में आ गए थे, उन्हें बाहर किया। 2016 में मोदी सरकार का आंकड़ा और थोड़ा कम आते हुए 308 पे सिमट गया। 2008 हमारी सरकार का चौथा साल, 12,625 को डिपोर्ट किया। 2017 में मोदी सरकार ने ये 3 डिजिट से 2 डिजिट पर आ गए, 51, मात्र 51 लोगों को बाहर किया। 2009 में हमने 10,602 को बाहर किया। 2018 में, अब क्योंकि 2019 पास आने लगा था और ये जो सांप्रदायिकता का नैरेटिव था, नफरत का नैरेटिव था, अब इसको थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी देनी थी, इसको थोड़ा वजन देना था। अब 51 से तुरंत उठ करके ये जो नंबर है 445 हो गया। तब भी 989 से ऊपर नहीं गया जो पहले साल में था, 445 मात्र बाहर किए हमने। 10,602 2009 में बाहर किए। 2010 में हमारी सरकार में 6,290 बाहर किए गए। 2019 में 299 मात्र बाहर किए गए। 2011 में हमने 6,761 बाहर किए। 2020 यानी इनकी सरकार का जो 8वां साल था, उसमें 7वां साल, माफ कीजिएगा, 258 बाहर किए गए। মুঠৰ ওপৰত শাসকীয় বিজেপি দলে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ ৰাইজক অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী বিতাড়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে, কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত বিদেশী বিতাড়নৰ সংখ্যা সন্দেহৰ আওতাত আছে। এনে পৰিস্থিতিত অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী এই শব্দটো বাস্তৱ সমস্যাৰ সমাধানতকৈ অধিক ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলিব পাৰি। বিশেষকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট সাম্প্ৰদায়িক গোটক লক্ষ্য কৰি অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী সমস্যাটোক ৰাজনৈতিক ব্যৱহাৰে নিৰ্বাচনী লাভৰ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।